أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم لما سبق لفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا ولا لعنة الله على أعدائهم وغاصبهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وإمامتهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم نساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجل لعنت اللہ علی القاذبین. درود پڑھ کر محمد وآل محمد. سامعین مکرم معظم برادران ایمانی و بزرگان ملت، ماتمداران آقا حسین علیہ السلام، علم بردار آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام، آپ کے سامنے عشر مجالس کی یہ ساتویں تقریب، ساتویں مجلس منعقد ہو رہی ہے، جس میں مسلسل ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے حدیث قصہ اور اہل بیت، جس میں ہم نے شروعات کی مجالسوں میں حدیث قصہ کی فضیلت بیان کری اور اس میں سے دلائل پیش کرے کہ حدیث قصہ نے کس طریقے سے اہل بیت کا قصیدہ پڑھا، اور اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت مباہلہ تلاوت فرمائی ہے، تو یہ کہا جائے کہ یہ اپنے موضوع سے الگ نہیں ہے، بلکہ حدیث قصہ کی جو تفسیر کری ہے وہ اس آیت نے کری ہے۔ اب جہاں تک کہ آپ تک کے کل مراحل پہنچے تھے اور بات ہوئی تھی کہ حدیث قصہ تفسیر جو ہے اس کی وہ آیت مباہلہ ہے، اور آیت مباہلہ نے ہمیں بہت سے پیغامات دیے، بہت سی ہدایت کری کہ دیکھو اگر کبھی اسلام پر، شریعت پر، دین پر، قرآن پر، نبی پر، اہل بیت پر، کبھی بھی نبی پر وقت آئے تو تم اہل بیت کو پیش کرنا، کبھی بھی دین اور شریعت پر وقت آئے تو تم ان کو پیش کرنا، اور دیکھو جب تم ان کو پیش کرو گے تو ان کو پیش کرنے سے ان کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اسلام کا فائدہ ہوگا۔ اب ہم مسلسل اسی جملے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کو پیش کرنے سے ان کا فائدہ نہیں ہے، اسلام کا فائدہ ہے، ان کو دامن تھامنے سے ان کا فائدہ نہیں ہے، دامن تھامنے والے کا فائدہ ہے، ان کو چھوڑنے سے ان کا نقصان نہیں ہے، جس نے چھوڑا اس کا نقصان ہے۔ اب آپ تاریخ کو پڑھیے اور پڑھنے کے بعد اگر آپ اس کے اندر غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ نتائج ملیں گے کہ جس نے ان کے در کو چھوڑا اس کا حال کیا ہوا ہے۔ باپ نے بیٹے کو ذلیل کرا، بیٹے نے باپ کو ذلیل کیا، ارے یہاں تک کہ جس بزم میں بیٹھتے تھے اس بزم والوں نے ذلیل کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے غدیر جیسے سمندر کو چھوڑا تھا اور ثقیفہ جیسے دلدل میں جا کے پھنس گئے تھے، تو جو بھی ثقیفہ کے دلدل میں پھنسا وہ آج تک کی نکل نہیں پایا بلکہ ذلیل و رسوا نظر آیا، کیونکہ اس نے غدیر جیسے راستے کو چھوڑا، ثقیفہ کے بنائے ہوئے امت کے راستے کو اپنایا۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو میں بھی خدا ہوں، پریشان نہ ہوں، اگر انہوں نے اپنی طرف سے یہ راستہ منتخب کرا ہے تو ان کو میں ایسا ذلیل کروں گا کہ روز قیامت تک کے کوئی بھی ان کا چاہنے والا ان کی ضلالت کو قبر نہیں کر پائے گا۔ ایک درود پڑھے پر محمد وآل محمد۔ تو قبلہ یہ نتیجہ ہے ان کو چھوڑنے کا۔ کل میں نے جہاں پر گفتگو کا اختتام کیا وہیں سے آغاز کر رہا ہوں کہ ان ہماری نظروں میں اور ہمارے لیے ان کا در ہی معیار ہے، ان کے در پر آنے والے ہی کو عزت ملتی ہے۔ جس نے ان کو چھوڑا تو نہ وہ دنیا میں رہ سکا نہ آخرت میں رہ پائے گا۔
बल्कि शौकत ने क्या खूब कहा था, क्या दुश्मनान अली, तो जन्नत की तमन्ना तो बड़ी दूर की बात है, इस बात की तमन्ना करो कि दोज़ख ही तुम्हें कबूल कर ले। भाई आलम बख्श का ये बयान किया कि जन्नत तो दूर, उसको तो ख्याल में भी ना लाना। अरे जो दोज़ख तुम्हारा मुकद्दर है, अगर वो ही तुम्हें कबूल कर ले तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनको छोड़ा था। आइए अब मैं आपको तारीख में मंजर दिखाऊं और अपनी मंजिल की जानी पहुंचूं। जिसने इनको छोड़ा तो नतीजा यह हुआ कि जब गदीर को छोड़ा गया, गदीर को भूला गया, गदीर से रुख मोड़ा गया, गदीर का दामन छोड़ा गया, तो नतीजा यह हुआ कि जब सकीफा बनाया गया और उसमें लोगों को खलीफा के लिए चुना गया, और जब पहले वाले को चुना, अब मैं ये तारीख के औराक पलट रहा हूं, ना कोई किताबत का फन है, ना कहा जाए कि मैं आपके सामने कोई ऐसी बात अपनी जानिब से पेश कर रहा हूं, बल्कि आप किताब उठाइए, किताब का नाम है तहज़ीबुल मतीन फी तारीख अमीरुल मोमिनीन। उस किताब में ये वाक़या मौजूद है, आप जाके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी किताब मयस्सर है, उर्दू में भी है, ये तर्जुमा भी है, आप पढ़िए तो इसमें लिखा जाएगा कि जब गदीर को छोड़ा गया और सकीफा के दामन को पकड़ा गया, तो जलील इस तरीके से हुए कि जब वो बने पहले खलीफा, तो बनने के बाद उन्होंने एक खत उठाया, खत को लिखा, अपने बाप को खत लिखा, इन्होंने पहले वाले ने अपने बाप को खत लिखा। खत में यह लिखा कि देखिए मुझे उम्मत ने खलीफा रसूल चुन लिया और मुझे उम्मत ने खलीफा रसूल मान लिया है, और मैं आपको ये दावत देता हूं कि आप मदीने आ जाइए, आपको खुशखबरी देता हूं कि आपके बेटे को खलीफा मुंतखब कर दिया गया है। अब ये खत जिस किताब में मौजूद है उसी किताब में इसका जवाब भी मौजूद है। अब देखिए बाप ने जलील किस तरीके से किया। अब जैसे ही ये खत बाप के पास पहुंचा, इनके बाप ने खत को पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्होंने लिखा कि सुन, पहली बात तो यह है कि तेरे खत में दो चीजें पाई जाती हैं, पहली चीज है झूठ, दूसरी चीज है तजाद। ये बाप बेटे से कह रहा है कि देखो पहली चीज झूठ पाया जाता है, दूसरी चीज तजाद पाया जाता है। झूठ ये पाया जाता है कि तू कह रहा है कि तुझे खलीफा रसूल चुन लिया गया है, चुन लिया गया है, और याद रख कभी भी रसूल का खलीफा चुना नहीं जाता है, बल्कि चुने हुए को बनाया जाता है। और तजाद ये पाया जाता है कि तू कह रहा है कि तुझे उम्मत ने खलीफा रसूल चुन लिया है, तो याद रख तू उम्मत का तो खलीफा हो सकता है लेकिन खलीफा रसूल नहीं हो सकता। और अगर तू ये कह रहा है कि तुझे उम्मत ने खलीफा चुन लिया तो फिर उस उम्मत में तो मैं भी हूं, मैंने तो तुम्हें नहीं चुना है। भाई तवज्जो आपने फरमाई, भाई बात कह रहा है कि उस उम्मत में तो मैं भी हूं लेकिन मैंने तो तुम्हें चुना नहीं, तो तुम उम्मत ने तुम्हें कैसे चुन लिया? भाई उस उम्मत में तो मैं भी हूं जब मैं चुनता। अब उन्होंने कयामत का जुमला लिखा, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि इन्होंने तुम्हें किस बिना पर खलीफा बनाया। इल्म है नहीं तेरे पास, शिजाअत तेरे पास है नहीं, सखावत तेरे पास है नहीं, हिल्म तेरे पास है नहीं, अमानतदारी तेरे पास है नहीं, सदाकत तेरे पास है नहीं। हो सकता है, अब बाप लिख रहा है, कह रहा हो सकता है कि इन्होंने तुझे तुम्हारी बुजुर्गी की वजह से चुना है। तो अगर इन्होंने तुम्हें तुम्हारी बुजुर्गी की वजह से चुना है तो इनसे कहे कि आके मुझे चुन ले, मैं इस मामले में तुम्हारा भी बाप हूं। अगर बुजुर्गी के मामले में चुना है तो मुझे चुन ले, मैं बुजुर्गी में तुम्हारा भी बाप हूं। तो ये तारीख ने बताया गदीर का पहला नतीजा छोड़ने का कि बाप ने बेटे को जलील किया। इसका मतलब जो इनको छोड़ता है, जो इनके दर से अपने रूप को बोलता है, तो तारीख में वो सफ़े हस्ती से ऐसे मिटता है कि तारीख उस सफ़े हस्ती की जगह पर कुछ भी लिख भी नहीं पाती है। एक नतीजा ये, अब जब डेलीगेशन बनाया गया, अब देखिए साजिशें देखी कैसी हो रही है। मैं आपको तारीख सुना रहा हूं। साजिश ये हुई जब डेलीगेशन बना के एक वक्त मुकर्रर करके इन्होंने आपस में राय मशवरा किया कि देखो हमारी खिलाफत से बनी हाशिम तो राजी है नहीं, उनमें से कोई राजी नहीं है। अब ऐसा ना हो कि कल को कोई हमसे ये सवाल पूछ ले कि ये बताइए जब आपसे बनी हाशिम राजी नहीं थे तो आप खलीफा कैसे बन गए?
तो इन्होंने कहा चलो हम ऐसा करते हैं कि अली तो हमारी जानिब आएंगे नहीं, हम चल के अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को अपनी तरफ कर लेते हैं, उन्हें दावत देते हैं। अब देखिए ये आए, आने के बाद क्यों आए? तो इस वजह से कि उन्हें अपनी तरफ करने के लिए, गदीर वाले को खलीफा से जोड़ने के लिए। अब आपकी समझ में आया, यही दुनिया का भी मिजाज है कि आजाद उम्मीदवार तोड़े जाते हैं, एमपी खरीदे जाते हैं, एमएलए खरीदे जाते हैं। तो इसकी बुनियाद कहीं से नहीं पड़ी बल्कि सकीफा से पड़ी है कि बाद चलो हम इनको मिला लें। आने के बाद का आए अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, हम चाहते हैं कि अली तो हमारे हुकूमत से राजी नहीं है, हम चाहते हैं कि आप देखिए अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के पास आए तो क्या कयामत का जवाब देंगे। आए कहने लगे हम चाहते हैं कि आप आए, आप हमारी तरफ हो जाए, आप हमारा साथ दिए इस खिलाफत में। जब आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको थोड़ा सा हिस्सा देंगे, आपको हिस्सादार बनाएंगे, इस खिलाफत में विरसादार बनाएंगे। अब ये इस्लाम की पहली रिश्वत दी जा रही है कि आप हमारी तरफ आइए तो हम आपको थोड़ा हिस्सेदार बनाएंगे, आपको इसमें से थोड़ा हिस्सा देंगे। तब जैसे ही ये जुमला सुना तो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि सुनो, अगर ये खिलाफत तुम्हारा हक नहीं है तो तुम्हें बांटने का हक किसने दिया? अगर ये खिलाफत तुम्हारा हक है, अगर ये खिलाफत तुम्हारा हक है तो तुम बांट क्यों रहे हो? अगर ये हमारा हक है तो हमें हिस्सा ना दो बल्कि पूरा खिलाफत दे दो। एक दुरूद पढ़ो और मोहम्मद व आले मोहम्मद, हमें हिस्सा ना दो बल्कि पूरा तख्ते खिलाफत हमें ही दे दो। अब जलील हुए। अब तारीख ने लिखा तीसरा मनासिक, यही किताब ताजुबुल मतीन की तारीख अमीरुल मोमिनीन, इसी में लिखा कि बड़ा इज्जतदार घराना, मोहतरम घराना, वो घराने का नाम था अबू दलफ, उसके बेटे का नाम था दलफ, तो बाप का नाम पढ़ के अबू दलफ, दलफ का बाप। अब तारीख में लिखा कि बड़ा इज्जतदार घराना, मुहिब्बे अहले बैत घराना। देखिए मैं इस वाक़ई को अर्ज करने से पहले ये जुमला अर्ज कर दूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोहतरम घराने वाले भी अगर इन्हें छोड़ देते हैं तो जलील हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि मलून घराने वाला अगर कोई इन्हें अपना लेता है तो इज्जतदार बन जाता है, तो मेयार इनका दर बना। अब मोहतरम घराना, बड़ा मोहतरम घराना, मुहिब्बे अहले बैत घराना, मुहिब्बे अली घराना, मुहिब्बे नबी घराना, मुहिब्बे खुदा घराना, अबू तलफ का घराना। ये अबू तलफ का बेटा दलफ जिसका नाम था, एक बार इसने अपने घर के बाहर तख्त लगाया, लगाने के बाद उस पर बैठा, बैठने के उसके बाद कहा कि सुनो तमाम शहर वालों, तमाम अरब वालों सुनो कि तुम सब जानते हो मेरा बाप अबू दलफ कितना मोहतरम है, मेरी माँ कितनी मोहतरमा है, मेरा बाप कितना मुत्तकी है, मेरी माँ कितना मुत्तका है, मेरा बाप कितना नसब के एतबार से दुरुस्त है, मेरी माँ भी नसब के एतबार से दुरुस्त है, मेरा बाप भी शजरे के एतबार से दुरुस्त, मेरी माँ भी शजरे के एतबार से दुरुस्त, मेरा बाप भी मुहिब्बे अहले बैत, मेरी माँ भी मुहिब्बे अहले बैत, लेकिन मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि मैं दुश्मन अहले बैत हूं। और उसके बाद जो नबी की हदीस है कि नबी ने इरशाद फरमाया कि अली का दुश्मन वही होगा जिसकी विलादत में कोई ऐब होगा, जिसका शजरा दुरुस्त नहीं होगा, जिसके खून में खराबी होगी। अब इसने कहा कि मैं इस हदीस का इनकार करता हूं क्योंकि तुम सब जानते हो मेरा बाप मोहतरम, मेरी माँ मोहतरम, मेरा बाप मुत्तकी, मेरी माँ मुत्तका, मेरे बाप का भी शजरा दुरुस्त, मेरी माँ का भी शजरा दुरुस्त, मेरा बाप का भी नसब दुरुस्त, मेरी माँ का भी नसब दुरुस्त, मेरे माँ के भी खून में खराबी नहीं, मेरे बाप के भी खून में खराबी नहीं, और मैं दुश्मन अहले बैत हूं। तो ये नबी की हदीस गलत है कि वो अली का दुश्मन होता है जिसकी विलादत दुरुस्त नहीं होती, खून में कोई खराबी होती है, शजरे की कड़ियां कहीं से टूटी होती है। अब जैसे ही इसने कहा तो पीछे से पर्दा हटा, अबू दलफ कहने लगी या यूहन्नास सुनो, इसकी बात सुनने वालों सुनो, मैं अबू दलफ ये तुम्हारे सामने जुमला कह रहा हूं कि अगर इसने अपनी जबान न खोली होती
تو میں نے اس کا شجرہ نہ کھولا ہوتا. اب تک تو زبان بند تھی تو اس کا شجرہ بھی محفوظ تھا، لیکن آج اس نے زبان کھولی ہے تو میں اس کا باپ ابو طلب یہ شجرہ کھول رہا ہوں. یہ تو سب تم دیکھ رہے ہو نا، یہ میرے نکاح کی نجانی نہیں ہے بلکہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے. یہ میرے نکاح کا نتیجہ نہیں ہے، گناہ کا نتیجہ ہے. باپ نے بیٹے کو ذلیل کیا. کیوں ذلیل کیا؟ در اہل بیت کو چھوڑا. اب جب دوسرے خلیفہ کی باری آئی، سنیے، اپنی بزم میں بیٹھ کر بزم والوں نے ذلیل کیا. کس طریقے سے ذلیل کیا یہ بھی ملاحظہ فرما لیا. اب جب باری آئی کہ دوسرے والے کو بنایا جائے، خلیفہ کوئی دوسرا چنا جائے، تو ایک نے اس بزم میں سے اٹھا، اس نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ یہ دوسرے والے صاحب کو بنا دو. اب جیسے ہی ایک صاحب نے بات سنی کہ تم دوسرے والے کو بنا دو، جو بنے تھے، جب ان کے لیے کہا جا رہا تھا کہ تم انہیں بنا دو، انہیں چنا جا رہا تھا سقیفہ کے دلدل میں، تو جیسے ہی کہا کہ تم انہیں بنا دو، تو اسی بزم میں سے ایک شخص اٹھا، جنہوں نے کہا بھائی تم عجیب بات کرتے، تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایسے کو خلیفہ بنا دیں جو اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا ہے. نہیں توجہ کری بھائی، یہ جملہ سمجھیے اور نتیجے تک کے پہنچیے. بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جسے حکم طلاق نہ معلوم ہو وہ شریعت کیا چلا پائے گا. ارے اپنی بیوی کو طلاق نہ دے پائے وہ نبی کی شریعت کیا چلا پائے گا. بزم والوں نے ذلیل کرا، لیکن یہ دلدل ایسا ہے جہاں کوئی معیار نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی عزت نہیں، جو آیا وہ پھنسا. اب لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، لعنت نہ کیا کیجئے. کچھ تھے نبی کے صحابی. بھائی ہم شیعان اہل بیت آپ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے کبھی بھی کسی صحابی پر لعنت نہیں کری، کسی صحابی پر لعنت نہیں کری، کسی صحابی کو برا نہیں کہا، بلکہ ہم نے وہابی کو برا کہا جو صحابی نما شکل میں آ گئے تھے نبی کی باتوں میں. اب قرآن جس کے لیے کہہ رہا ہے، دیکھیے قرآن میں لوگ کہتے ہیں آپ لعنت نہ کیے، اس سے خلفشار پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے. آپ بتائیے اگر لعنت بری چیز تھی، کوئی ایسی چیز تھی کہ نہیں کرنا چاہیے، مسلمان ناراض ہو جاتے، تو قرآن نے اپنے اندر لعنت کے کیوں رکھا؟ بس جس قرآن میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، احکام حج ہے، اسی قرآن میں صلوات بھی ہے، اور صلوات کے ساتھ ساتھ لعنت بھی ہے. سورہ احزاب اٹھائیے، پڑھیے، آپ کو اس میں 56ویں آیت درود کے سلسلے میں، 57ویں آیت لعنت کے سلسلے میں. اب اللہ نے بھی لعنت کن پر کری؟ اب اللہ کی لعنت کو اور ہم جن پر لعنت کرتے ہیں میچ کریے، ٹیلی کریے. اللہ سورہ احزاب میں 57 آیت میں ارشاد فرما رہا کہ دیکھو جو بھی اللہ اور اس کے نبی سے شرارت کرتے ہیں اللہ ان پر یہاں بھی لعنت کرتا ہے، وہاں بھی لعنت کرے گا. تو اللہ نے ایک معیار بنایا کہ لعنت اس پر کری جائے گی جو خدا سے شرارت کرے گا، نبی سے شرارت کرے گا، نبی سے شرارت کرے گا. آئیے میں آپ کو ان کی شرارتیں دکھاؤں کہ نبی سے کیسے کی. نبی مانگ رہے ہیں قلم، دے نہیں رہے ہیں. نبی قلم مانگ رہے ہیں، دے نہیں رہے ہیں. نبی حدیث سنا رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں. نبی اہل بیت کو کہہ رہے محبت بیان کر رہے ہیں تو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. بھائی شرارت تو اتنی وہی کہ نبی کی بزم میں بیٹھ کے نبی سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ دیکھو خبردار تم نبی سے اونچی آواز میں بات مت کرنا. قرآن نے ڈانٹا، یہ کہا کہ دیکھو خبردار یہ نبی ہیں، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا. تب بتائیے یہ نبی سے شرارتیں کی گئی یا نہیں کی گئی؟ کی گئی شرارتیں. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہم سے شرارت کرے، میرے نبی سے شرارت کرے، اس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو بھیا جب اللہ لعنت بھیج رہا ہے ایسے شرارتیوں پر تو ہم بھیج رہے ہیں تو کیا برا لگ رہا ہے؟ کیا تو آپ کہیں یہ شرارتی نہیں تھے؟ اگر یہ شرارتی نہیں تھے تو نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ نبی نے انہیں 40ویں دن علم کیوں نہیں دیا؟ یہ شرارتیں کر رہے تھے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم شرارتیں کرتے جاؤ، ہم لعنت کرتے جائیں گے. تو بھائی ہم یہ جو لعنت کر رہے ہیں یہ اپنی جانب سے نہیں کر رہے ہیں، حکم الہی سے کر رہے ہیں. ہم لعنت کافروں پر کر رہے ہیں،
सहाबियों पर नहीं कर रहे हैं। इस जुमले को महफूज करिए और गुफ्तगू को तमाम करूं। हम लानत काफिरों पर कर रहे हैं, सहाबियों पर नहीं कर रहे हैं। अगर सलमान जैसे सहाबी तो लायक एहतराम, अबू जर जैसे सहाबी तो लायक एहतराम, मीसम जैसे सहाबी तो लायक एहतराम, हमारे किया सलमान जैसे सहाबी का एहतराम होता है, उस्मान जैसे सहाबी का एहतराम नहीं होता। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, अगर किसी को बुरा लग रहा है नाम लेना तो मुझसे मिल सकता, मैं दिखा सकता हूं। जो पढ़ रहा हूं मेहनत करके पढ़ रहा हूं, कुरान भी है, किताब भी है। आइए और देखिए और सुनिए खुद। जिनको रवादारी में इनका नाम ना लिया करिए। अरे जब हम नहीं बताएंगे कि कौन थे तो कोई दूसरा थोड़ी ना बताएगा। अम्मा जब हम इसके कातिल को छुपाएंगे तो वो थोड़ी ना बताएंगे कि ये थे कातिल। खुद अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, सुन ले जिनको बुरा लगता है वो सुने गौर से। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि अगर कोई मेरे दुश्मन से जरा सी भी नरमी रखता है तो वो अपने को वली का शिया ना कहे। अगर इतनी नर्म दिली है तो जाइए उनकी बस्ती में बस जाइए, सकीफा के दलदल में फंस जाइए। आपसे कोई नहीं कह रहा कि गबीर में आके बस जाइए। अगर इतनी हमदर्दी नजर आ रही है साहब वो थे सहाबी, तो जाइए आप भी उनके जाइए, मानने वालों में तो शुमार हो जाइए। आपके यहाँ रहने से इनका इजाफा नहीं होगा, हट जाने से कोई घटेगा नहीं। आपकी औकात पता चल जाएगी कि किस मेयार के आदमी है। और कुरान ने इनको काफिर कहा, मुसलमान ने काफिर नहीं कहा, कुरान कह रहा। पढ़िए आप, कुरान इरशाद फरमा रहा है, कुल अतीउल्लाह व रसूलहु व इन तवल्लव व अन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। मेरे हबीब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा में उन्होंने इस आयत का शान नुज़ूल लिखा। वो लिखते हैं जंग उहद का मार्का था, जब लोग नबी को छोड़ कर गए पहाड़ का सहारा लेने, तो फौरन अल्लाह ने कहा मेरे हबीब ये जिन्होंने आपको छोड़ा है ना, इनसे कहिए कि इताअत करो अल्लाह की और रसूल की। और देखो अगर किसी ने भी आपको छोड़ा तो अल्लाह फिर उसे दोस्त नहीं रखता है, वो काफिरों में से है, काफिरों में से है, मुसलमान नहीं है। तो अब जंगे उहद ने हमें बताया कि जिसने नबी को छोड़ा वो काफिर हो गया, वो काफिर हो गया। जिसने छोड़ा और सबने छोड़ा, जिसने छोड़ा वो काफिर। अब आप ये बताइए, कोई कहते कि 7 लोग कहते वो पहले ईमान लाए, उन्होंने पहले कलमा पढ़ा, उन्होंने पहले कलमा पढ़ा, उन्होंने पहले कलमा पढ़ा। तो कलमा पढ़ना मेयार नहीं है। आप ये बताइए जंगे उहद के बाद किसने कलमा पढ़ा? भाई जंगे उहद में सब काफिर, जिसने नबी को छोड़ा वो काफिर हो गया। तो जब काफिर हो गया तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए फिर कलमा पढ़े। जब कलमा नहीं पढ़ा तो मुसलमान कैसे हुआ? अम्मा जब मुसलमान नहीं हुआ तो खलीफा कैसे हुआ? जब मुसलमान ही नहीं हुआ तो मुसलमानों का खलीफा कैसे हुआ? तो कुरान कह रहा है जिसने भी आपको छोड़ा वो काफिर है। तो हम नबी के जो नबी को छोड़ कर गए उन पर लानत करते हैं, नहीं नबी के सहाबियों पर लानत नहीं करते हैं। अब ये मुसलमानों का मुकद्दर है कि वो उनको सहाबी बना बैठे, तो इसमें हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। भाई आप कुरान के खिलाफ गए, हम तो कुरान के खिलाफ नहीं गए। कोई मिल्लत का बंदा झूठी से झूठी तारीख ला के बताए कि इन जाने वालों ने दोबारा कलमा पढ़ा जंगे उहद के बाद। पढ़ा किसी ने? आपने इतनी मजलिसें सुनी, इतने लोगों से ना जाने कितने बड़े बड़े आलिमों को सुना, कभी किसी ने यह पढ़ा कि जब जंगे उहद में काफिर हुए तो दोबारा मुसलमान हुए? कहीं पढ़ा? किसी से सुना? ना हमने सुना, ना हमने लिखा देखा। तो जब ये काफिर से मुसलमान हुए नहीं तो ये मुसलमानों के खलीफा कैसे हो चुके? तो भैया हम काफिरों पर लानत करते हैं, सहाबियों पर लानत नहीं करते हैं। एक दुरूद पढ़ो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम काफिरों पर लानत करते हैं। अब ये आपको मुकद्दर है कि आपने काफिरों को खलीफा मान लिया और हम पे एतराज कर रहे हैं आशिया तो काफिर है। भाई अब यहां पर एक
मुहावरा इस्तेमाल होता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि साहब है खुद क्या हमको रहे कि साहब ये काफिर है। क्यों काफिर है? हमने अबू सुफियान को नहीं माना इसलिए, माविया को नहीं माना इसलिए काफिर है। अगर हम काफिर है तो आओ रोज़े महशर आके अल्लाह से कह देना कि परवरदिगार जहां अबू सुफियान जाए हमें वहीं रखना, और हम ये दुआ करेंगे कि जहां अबू तालिब जाए हमें वहां रखना। अब खुद फैसला कर लेना कौन जन्नत वाला है कौन दोजख वाला है। तो दुरूद बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुद फैसला कर लेना, हिम्मत हो तो कह के दिखाना कि जहां वो जाएंगे हमें वहां भेजना। हम ये कहेंगे कि जहां अबू तालिब और उनके अहले बैत उनकी आल जाएगी वहां हमें भेजना। क्योंकि हमारे यहाँ कोई चीज रस्म और रिवाज की नहीं है कि हमारे बाप मानते थे तो हम भी मान रहे हैं। सवाल आपसे किया जाएगा आप क्यों मानते हैं? बाप को छोड़िए, आप बताइए। आप इनको मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं? क्या दलील है? तो क्या कहेंगे हमारे बाप मानते थे? ये तो कोई दलील नहीं हुई। आप बताइए कि हम अली को इसलिए मानते हैं कि ये बिला फस्ल है, ये हकीकी नबी के जानशीन हैं, इसलिए मानते हैं। तो जो इनके दर को छोड़ दे, चाहे वो हमारा बाप भी हो, हमें काबिल कबूल नहीं है। और जो इनके दर को कबूल कर ले, चाहे वो दुश्मन हो, हमें कबूल है, क्योंकि मेयार इनका दर है। इनको छोड़कर ना जिल्लत है और ना मेयार है। जिसने इनको छोड़ा उसने सब कुछ छोड़ा, रसूल को भी छोड़ा और खुदा को भी छोड़ा। तो जो खुदा का नहीं वो हमारा नहीं। हम कैसे उससे दोस्ती रख ले, कैसे उनसे अपना मिजाजन गुफ्तगू करने लगे? ठीक है, थे तो सहाबी आबी नहीं तो ये कहानी है पूरी। इस साजिशें की कैसे गई, बनाया कैसे किया। तो लिहाजा हम उनके दुश्मन से मुरव्वत नहीं रखते, बस अभिगान निगरान। तो अहले बैत मेयार है। आप सोचिए करबला के मैदान में क्या है, उधर भी कलमा पढ़ने वाले, इधर भी कलमा पढ़ने वाले, नमाजें उधर भी पढ़ी जा रही, इधर भी पढ़ी जा रही है। वो भी अल्लाह अकबर कह रहे, ये भी अल्लाह अकबर कह रहे, वो भी उसकी तौहीद का ऐलान कर रहे हैं, ये भी ऐलान कर रहे हैं, वो भी उसकी नबी की रिसालत का ऐलान कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो फर्क क्या है? जंग क्यों हुई? का जंग हुई है इस बिना पर कि गदीर को छोड़ा था। तो नतीजा यह हुआ था कि नबी के फर्जंदान के मुकाबले पर आ गए थे। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि अजब खेल है इस्लाम की तकदीर के साथ, कद्र शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। सोचिए, जिसके नाना ने मुसलमान बनाया उसी के नवासे के मुकाबले तलवारें खींच कर आए वो हुसैन इब्न अली। सोचिए, इमाम हुसैन की आपको मैं बताऊं रहीमी क्या है? रहीम कहते किसे? सब शहीद हो गए, अली असगर भी शहीद हो गए, तना इमाम हुसैन बचे। इन लोगों से कह रहे कि देखो अगर तुम हमारे खून से बाज आ जाओ तो तुम्हें माफ कर देंगे। ये है करीमी। अली अकबर जैसा जवान बेटा कत्ल हो गया, उसके बाद भी कह रहे अगर बाज आ जाओ तो माफ कर देंगे। 6 महीने का बच्चा शहीद हो गया, बाज आ जाओ तो माफ कर देंगे। कासिम का लाशा पमाल हो चुका, देखो अगर तुम हमारे खून से बाज आ जाओ तो माफ कर देंगे। ये है हुसैन, ये हुसैन की करीमी। हाँ बेदारो, आज 7 मुहर्रम हो गई है। आज 13 बरस के शहजादे की मेहंदी आप उठाएंगे, घरों में मेहंदी सजाएंगे। आपको मालूम है, आप तो मेहंदी में मेहंदी रखते हैं, हस्ब हैसियत जो जो आपके दिल में चीजें होती हैं वो रखते हैं। लेकिन करबला के मैदान में ये मेहंदी कैसे रचाई गई बताओ? आप यहाँ मेहंदी रखते हैं, लेकिन करबला के मैदान में ये मेहंदी खून से रचाई गई थी। हमारे यहाँ दुल्हनों को जेवरात पहनाए जाते हैं, लेकिन करबला के मैदान में इस दुल्हन के जेवरात छीने गए थे। हमारे क्या दुल्हनों को नया नया लिबास दिया जाता है, पहनाया जाता है, लेकिन करबला के मैदान में कुबरा को लिबास कोई लेकर नहीं आया, बल्कि चादर उतारने आया था। वही कासिम के आ रहे, इजाजत ले रहे, लेकिन इजाजत नहीं मिलती है। एक वक्त वो आता है कि याद आया कि हाँ, बाबा ने एक बाजू पर ताबीज बांधा था,
तावीज खोला, छूमा, अम्मू की बारगाह में आया था। अम्मू, ये बाबा ने तावीज बांधा था और ये कहा था जब मेरे भाई पर मुसीबत आए तो मेरे भाई को ये तावीज दे देना। मक्का ने लिखा कि इमाम हुसैन ने तावीज को लिया, छूमा, आंखों से लगाया, तहरीर पढ़ी। पढ़ने के बाद चचा ने भतीजे को गले लगाया। गले लगाकर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए तो दोनों चचा भतीजे गश खा गए। गश से फाका हुआ। तो इमाम हुसैन ने कहा, मेरे लाल, तुमने मेरे भाई की वसीयत दिखाई, लेकिन मुझे भी अपने भाई की एक वसीयत याद आ गई। फौरन कहा, मैं फरमा जरा मेरे भाई हसन का संदुकचा लाइएगा। संदुकचा आया, हसन का मामा निकाला, कासिम के सर पर रखा, कबा निकाली, तन पर पहनाई, अबा निकाली, दोष पर डाली। डालने के बाद बुलंद किया 13 बरस के शहजादे को, मदीने का रुख किया। तो मेरे भाई ये देखो तुम्हारा कासिम। फिर कहने के बाद कहा, ज़ैनब जरा जाओ मेरी बेटी फातिमा कुबरा को बुला के लाओ। आई फातिमा कुबरा। इमाम ने बेटी का हाथ लिया, भतीजे के हाथ पे रखा। रखने के बाद हजरत अब्बास को गवाह बनाया और इब्ने अली को गवाह बनाया। बनाने के बाद आपको पढ़ा, हाँ अदादार, ये कयामत की शादी नजर आई थी कि जहां मेहंदियां रचाई जाती है वहां खून के मैदान में शादी हो रही है। ये अब हुआ कि इतने में जनाब कासिम ने एक सदा सुनी कि नरगा आदा से एक सदा बुलंद हुई, हुसैन क्या तुम्हारी तरफ कोई नहीं बचा जो तुम पे जान निसार करे? क्या हुसैन तुम्हारी जानिब तो सब शहीद हो गए, कोई नहीं बचा? जनाब कासिम ने कहा, चचा इजाजत दिए तो इस वलद हराम की जबान को काट दूं। कासिम गए, कयामत की जंग करी। जंग करने के बाद इतने में एक मलून आगे बढ़ा, शहजादे पर वार किया। शहजादे घोड़े की जीन से जमीन पर आए। आने के बाद तारीख बताती है कि जैसे ही शहजादे जमीन पर आए और आने के बाद एक जुमला कहा, अम्मू जरा भतीजे की खबर मिलेगा। इमाम हुसैन ने फौरन लगाम को संभाला। संभालने के बाद चले, मेरे भाई की बेटा है ना, मेरे भाई की निशानी है। इमाम हुसैन इतनी तेजी से बढ़े कि लाइनों को खौफ हुआ, कहीं ऐसा ना हो तो हुसैन हम सबको कत्ल करते। इसी असना में इधर के घोड़े इधर दौड़ाए गए, उधर के घोड़े उधर दौड़ाए गए। अरे कासिम का लाशा बमाल हुए। एक मुसीबत सुनिए, मैं मसाइब को तमाम कर दूं। तारीख बताती, इमाम जब भी किसी शहीद के पास गए तो इमाम को बहुत आसानी से लाशा मिल गया, लेकिन जब कासिम के पास गए तो इमाम के जुमले कह रहे थे, कासिम मेरे लाल कहाँ हो? अरे चचा तो नजर नहीं आ रहे हो। कोई आवाज बुलंद नहीं हुई। फिर कहा, मेरे लाल कासिम कहाँ हो? अरे चचा आवाज दे रहा है, मेरे लाल कहाँ हो? कोई आवाज नहीं आई। पख्तल ने लिखा कि इमाम एक बुलंदी पर है। जाने के बाद इमाम ने कहा, कासिम कहाँ हो? तुम्हें तुम्हारा वक्त था। इमाम हुक्म दे रहा है कि लब्बैक कहूं इमाम की आवाज पर। लिए कासिम के टुकड़ों ने लब्बैक लब्बैक कहते इमाम की आवाज पर लब्बैक कहा। इमाम पहुंचे। पहुंचने के बाद दबा को फैलाया, गिरिया करते जाते हैं, टुकड़े रखते जाते हैं, करते जाते हैं, टुकड़े रखते जाते हैं। इमाम ने गठरी बनाई। बनाने के बाद फिर मदीने का रुख किया। कहा, भैया ये लो अब तुम्हारा ये कासिम हो। गठरी को कलेचे से लगाया, आए खेमे की दर पर। जैसे ही खेमे के दर पर आए, उम्मे फरवा को गठरी दी। सोची मां ने किस तरीके से 13 बरस के लाल की गठरी संभाली होगी। संभालने के बाद रखी। रखने के बाद हुसैन से एक जुमला था, तो मेरे वालियों वारिस ये बताइए कि अब तक के कोई भी शहीद आया तो उसके या तो तहतियाने पुरसा दिया रोने वालों ने, या सरहाने पुरसा दिया। अरे भैया हुसैन सिर्फ इतना बता दिए कि कासिम का तहतियाना और सरियाना किधर है? अरे उसकी मां पुरसा देना चाहती है, लेकिन और कासिम का सरियाना नजर नहीं आ रहा है। अरे मां पुरसा दे दी तो कहां दे? खेमे में मोरान बरपा हुआ, वहां कासिमा लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।